Hello students, so today we are going to start the new topic, that is the physiological factors determining flexibility. So the first factor which determines the flexibility of an individual is the joint structures. Basically होता क्या है कि आपका जो joint है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा. से फॉर एग्जांपल आपका शोल्डर जॉइंट जो है वो आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करेगा. एल्बो जॉइंट वेरएस कम मूवमेंट प्रोवाइड करेगा. सो जॉइंट स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ जॉइंट. एग्जांपल, द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट ऑफ द शोल्डर हैज़ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ ऑल मोशंस ऑफ ऑल द जॉइंट्स, वाइल दैट इज़ नॉट सेम इन ऑल पॉसिबल एल्बो जॉइंट्स. ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है जो आपको 180 डिग्रीज तक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है अगर आप प्रैक्टिस करो. वेरएज इस तरह की सिचुएशंस आपकी पॉसिबल नहीं है एल्बो जॉइंट्स में. सो द पर्सन हु आर डूइंग योगा, who are doing athletics, who are engaged in the exercises, they can just move their joints to 180 degrees while practicing. So joint structures provide us the suitable range of motion, and that is only possible with a few kinds of joint only. Whereas when we are talking about elbow joint, we can't proceed it beyond 180 degrees because this is not the feasible in the case of elbow joints, that is the hinge joint. तो hinge joint आपको इस तरह की flexibility provide नहीं करता है. So joint बहुत एक important factor है in the movement. So the next factor is the age. Flexibility is also determined on the basis of age. So the range of motion and the flexibility decreases with age. Children have more flexibility than एडल्ट्स. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ग्रोइंग एज में जब किसी भी चाइल्ड की बोन्स होती हैं तो वो ईजिली मूव हो जाती है, ईजिली मूवमेंट शो करती हैं, वेरएज ब्रेकिंग का चांस कम होता है. वेरएज जब एल्डर्स कोई ग्रो अप हो जाता है तो उसकी बोन्स एक स्टैटिक पोजीशन, एक स्टैटिक शेप ले लेती है. अगर वो ज़्यादा उसमें स्टार्टिंग में कभी हमने इनिशियल टाइम पर ज़्यादा एक्सर्शन नहीं किया या उसकी स्ट्रेचिंग नहीं करी तो दैट इज़ नॉट एज फ्लेक्सिबल एज द child bone. Another factor which is responsible for the flexibility is the gender. So flexibility is determined on the basis of the gender. Females tend to be more flexible Flexibility is determined on the basis of the gender. So you all should Females know that tend to be more flexible than are males. more flexible as तो compared दो to चीजें आपने males. So स्ट्रेंथ, age स्पीड and और एंडोरेंस gender देखा, are the आदमियों two का ज्यादा factors है which औरतों also का कम determines the है. लेकिन flexibility फ्लेक्सिबिलिटी of जो an है individual. लेडीज कनेक्टिव टिश्यू, So the next factor deep connective tissue responsible for such the as fascia and flexibility is the tendons can connective limit tissue. range of motion. Deep connective tissue Ligaments such as do not fascia and seem to tendons can display any limit the plastic range of properties. motions. जो इसका ligaments मतलब ये होते है हैं कि उनमें जो कोई elastic connective tissue है properties जैसे नहीं fascia और होती tendons है, But ये आपका if we expose मोशन them को to stretching, enhance they नहीं may करते, they are extend just to a limiting new that. length. अगर लेकिन हम जो उनको ligaments है, स्ट्रेचिंग की कार्य अगर हम से इनको एक्सरसाइज के साथ एक्सपोजर प्रेरित दें कराएंगे, तो ठीक है, ये एक न्यू उनको लेंथ अटेन कर सकते हैं. क्या कहते हैं इसको इंट्रोड्यूस Although कराएंगे, यानी कि लिगामेंट में कोई we will इलास्टिक perform प्रॉपर्टीज some नहीं stretching है, बट exercise स्टिल that will help अगर to आप extend. मैक्सिमम आप एक्सरसाइज उसके कर रहे बाद हो, लास्ट ऑन पॉइंट एक्सरसाइज है में इसका इंडल्ज हो, तो मसल आप इनको बल्क. एक न्यू लेंथ ठीक, दे सकते मसल हो. बल्क का अल्टीमेटली मतलब क्या है? दे कैन प्रोवाइड यू मोर ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो. मसल बल्क का मतलब And the ये है last कि अगर factor which आपकी is मसल responsible ज्यादा for the है, flexibility is the ठीक, muscle bulk. तो अगर So आपकी size of the मसल muscle ज्यादा है or तो muscle उससे bulk क्या होगा? can उससे adversely होगा affect ये the भाई range साहब of कि मसल motion. बल्क होने की वजह This से भी means कि आपको जितना ज़्यादा मसल रेंज बल्क नहीं होगा बनेगी. उतनी ही कम आपके फ्लेक्सिबिलिटी पास उसमें होगी. पिक लगी आपने हुई है, ऑफन देखा आपके होगा कि जो वीडियो भी लोग में जब आप जिम देखोगे जिम्नेजियम में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और दे आर जस्ट गोइंग फॉर मोर एक्सरसाइजेज, उनका मसल बल्क ज़्यादा होता है, तो दे आर अल्टीमेटली हैविंग द कम हो लेस जाती है. फ्लेक्सिबिलिटी. रीजन भी they are muscle bulk having adversely more muscle affects mass. the उनके पास ज़्यादा motion muscle of the mass होता है. body. Thank you and God bless. That's all for today. Thank you.